जितनी सशक्त होनी चाहिए। जैसे उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनकी अपनी कोई विचारणा नहीं थी। लेकिन जब दुनिया में आत्मनिर्भर का सिद्धांत आया और जब उदारवादी समाज के निर्माण की बात की गई, तो महिलाओं की आइडेंटिटी को लेकर के भी विचार किया गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भारतीय महिला संघ है, भारतीय महिला संघ ने जो आज जितने स्त्री विमर्श के जितने भी डायमेंशन आप देख रहे हैं और जिस पर आज बातचीत की जा रही है, उन डायमेंशंस के कुछ बिंदुओं पर बहुत ही सारगर्भित बातचीत उस समय की गई, जिसकी उपादेयता आज भी बनी हुई है। आज भी आप देखिए, स्त्री विमर्श भारत में जिन चीज़ों की तलाश कर रहा है, जिसकी खोज कर रहा है, चाहे वो जेंडर इक्वलिटी की बात हो, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो, बाय द एजुकेशन, सारे मुद्दों पर आज जो बात हो रही, उन मुद्दों को उस समय भी उठाया गया। मैं बहुत सारगर्भित रूप से अपनी बात को रख करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Anjali Shivhare, faculty, Jagat Taran Girls College. Anjali Shivhare, ma'am, please. Respected Chair, faculty members, and dear students, good afternoon. I, Anjali Shivhare, am here to discuss my paper, which I have co-authored with Dr. Rama Gupta. The title of the paper is Role of Sharda Sadan in Women Education and National Movement and Evaluation. 19th century in India was the age of social and religious reforms. The condition of women was especially most deplorable. Her birth unwelcome, her marriage a burden, widowhood inauspicious, and old age a trouble. To uplift the status of women, many organizations were working. It was realized that women upliftment can be done only through education. So, one of the leading institutions and pioneer among them was Sharda Sadan, which was established by Pandita Ramabai Saraswati in 1889. Ramabai Saraswati, who was born as Ramabai Dongre, she was born in Maharashtra in a highly religious Chitpavan Brahmin family. Her father, being an educationist himself, gave Ramabai a formal education, which was very uncommon for women back then. Later, after the death of her parents and elder sister in famine, along with her brother, she traveled throughout the country and discussed religious scriptures like Purans and other Sanskrit ones. Calcutta University conferred upon her the titles of Pandita and Saraswati for her in-depth knowledge of Sanskrit scriptures. Pandita Ramabai got widowed at a young age of 23, and she founded Sharda Sadan after her sojourn in England and then US, where she collected funds for establishing a shelter for widowed women. Sharda Sadan was an institution meant for education of women, especially widowed women. Sharda Sadan played, my paper is about the role of Sharda Sadan in women education and national movement. So I'll first discuss the role of Sharda Sadan in women movement. Sharda Sadan played a very significant role in the emancipation of women through education in India.
Sharda Sadan served as the centers for women's education and empowerment, which contributed to the freedom movement. The institute contributed in numerous ways. First, women's education. By imparting knowledge and skills, the institution tried to empower women and to become independent and self-reliant. Secondly, the institution helped in empowering the voices of women. Sharda Sadan provided a platform for women to express their opinions, discuss social issues, and engage in intellectual debates. This empowerment of women played a crucial role in shaping their perspective on freedom, equality, and justice. The institution also worked for social reforms. Ramabai herself was a staunch advocate for the rights of women, especially those who were marginalized and oppressed. Through Sharda Sadan, she actively worked towards eradicating societal evils like child marriage, sati, and other discriminatory practices. Though she never directly supported widow remarriages, but she never opposed them. By challenging the oppressive customs prevalent in society, the institution fostered a spirit of resistance and progressive thinking among its inhabitants. Sharda Sadan also played an important role in national awakening. It tried to instill consciousness, a sense of patriotism, and love for the nation among its students. The institution emphasized the importance of social responsibility and the duty to work for the betterment of the country. For concluding the paper, I would call Dr. Rama Gupta. She will conclude it. Actually, Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. concluded. Conclusion. Ma'am, आपका introduction हो गया. I would like to invite Dr. Rama Gupta, ma'am, to present conclusion remarks. Ma'am. My paper has been co-authored with Anjali Shivare. She has introduced about Pandita Ramabai and she told about the contributions of Sharda Sadan. Now, I will conclude this paper. In conclusion, we can say that while Sharda Sadan may not have directly participated in No, it's okay. इस पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है. So, may I start? Yes, ma'am. Sharda Sadan was the organization that served for the sake of women's education and it also tried to improve the condition of widows by providing them with education and some skills required for their livelihood. And in conclusion, I conclude that while Sharda Sadan may not have directly participated in political activities or
campaigns for independence, but its focus was on women's education, empowerment, and social reform that had a profound influence on the mindset of its students. The institution's efforts in raising awareness, fostering progressive thinking, and instilling a sense of social responsibility played an important role in shaping the freedom movement in India. Thus, the Sharda Sadan gave shelter to thousands of destitute women and made them self reliant, and in this way, it contributed towards the national struggle for India's freedom. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I would like to request a volunteer to present memento to Professor Anuradha Agarwal, ma'am. I would like to request a volunteer to present memento to Professor Sarika Dubey, ma'am. तालियां बजाते रहिए, क्यों कंजूसी करनी है? I would like to request a volunteer to present memento to Dr. Neelima Singh, ma'am. I would like to call upon our volunteer to present memento to Dr. Shunali Chaturvedi, ma'am. अब डिस्कसेंट्स के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट अनुश्री पांडे, फैकल्टी सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज. First of all, I would like to apologize for my sore throat and thank all of you in advance for bearing with this voice of mine for next few minutes. It is a matter of great delight, pride and honor for me that I stand here in this technical session on women's organization, and the entire dais is right now filled with beautiful energy of these wonderful 5 teachers, guide and path makers. I think this itself is an example of how beautiful was the role of women's organizations that we are getting to see settings like this today. It is in fact a happier moment because one of the teachers on the dais is my guru, my teacher, Professor Anuradha ma'am. I extend my warmest greetings to all of you, and I extend my greetings to all the audience members present here. Well, it is said that, generally understood that, Indian national movement is a monolithic grand story. My paper is an attempt to challenge this idea. The title of my paper is Women and Militant Nationalism in Indian Freedom Struggle, an Institutional Overview. Militant nationalism is known by many names. Some call it militant nationalism, others prefer to call it revolutionary terrorism. I would like to begin by pointing out the difference between extremist people and militant nationalist. It is generally understood that both of them were one and the same group, but no, actually,
The militant nationalists were critical not only of moderates but also of extremists. They believed in the culture of revolver and bomb. In this context, I would like to point out a statement of Bal Gangadhar Tilak, which he wrote in Kesari in 1897, that he actually quoted Shri Krishna's advice in Gita to kill even our own teachers and kinsmen if required for the sake of the work. No blame attaches to any person if he is doing deeds without being actuated by the desire to reap the fruits of the deed. And this was the basic philosophy of these militant nationalists. When we take a look at militant nationalists, we often find the literature built around brave martyrs like Chapikar brothers, Madanlal Dhingra, Bhagat Singh, and many more such great names. Most of the available literature points out the role of young, fiery men, I say men, who took up the culture of bomb and revolver in order to earn freedom for motherland. I use the term men because while writing down this research, while writing down this paper, most of the resources which I was using actually address these militant nationalists as men. And this is the idea that my paper stands to challenge. The role of women in militant nationalism seems to be less understood, less researched, and very, very less appreciated. When I say the two terms together, women and militants, it seems like they don't fit together. They don't suit with each other. And there are two reasons which I find are particular in this matter. First, women as a gender group are stereotyped to be more nurturing, caring, and peace-loving than men. There is a very famous quotation of Mussolini which says, "War is to men what maternity is to women." We might not agree with fascism and Mussolini, but I'm very, very sure that society accepts this patriarchal distribution of gender role to women. The second reason is that many women, not many women had access to the agencies of decision making in their personal lives, let alone in violence-based protest activities. I would like to point out a fact here. At the time of independence, the literacy rate of women was merely 9%. It is difficult to, can I continue? Yeah, you can continue. It is difficult to imagine that hands which could barely reach books had bombs and revolvers in them. Even though these two reasons are the most accepted reasons behind the absence of understanding of contribution of militant women, the history tells another story. There have been many, many women who participated as militant nationalists in the freedom struggle. If you have heard the name of Chapikar brothers, then there was also the duo of Shanti and Suniti, who shot Mr. Stevens by entering into his bungalow at a point-blank range for avenging the hanging of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. The most interesting part about this heroic deed is that they were merely 14 and 15 years old when they did this. Before this happened, some senior leaders questioned the capacity of these little girls going into action, to which Suniti replied, "What good is our current dagger and stick play if we shy away from real action?" The two girls were arrested and tortured, mercilessly beaten, but they maintained their calmness all this while. When they were given life imprisonment, they got disappointed and demanded hanging and stated in an interview that it is better to die than to live in a horse's stable. The difference between militant women nationalists and non-militant women nationalists can be also explored on the basis of the impact of their activities on their respective family lives. For example, Suniti Chaudhary's father's government pension was stopped. Her two elder brothers were held in custody without trial. There is another dimension which should be addressed while talking about militant women's contribution, because these were the women who were not only challenging the mighty, big British Empire, they were also challenging
the domesticity, the domestic life, the family life, their roles as mothers, daughters, and wives. To understand this better, I would like to use an example of another brave lady, Rajkumari Gupta. When non-cooperation movement stopped abruptly, she was drawn towards the revolutionary ideas and came in association with the group of Chandrasekhar Azad. She began delivering secret messages and materials to Chandrasekhar Azad, comrades in the Hindustan Socialist Republic Association, without the knowledge of her husband and in-laws. When she got arrested, her in-laws disowned her and even went on to claim in the local newspaper Veer Bhagat that they did not have any relationship with her. Because the theme is women's organization, I would like to point out the name of two organizations, Chhatri Sangh and Dipali Sangh, which were actively involved in training these women, preparing them to make bombs, deliver secret messages, and so on. I would like to conclude by stating the philosophy of militant nationalism, which says that it takes a very loud noise to make the deaf hear, and a lot of women were involved in this work. Now, because we are doing this under the auspice of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and one of the most celebrated themes of Azadi Ka Amrit Mahotsav is the role of unsung women heroes, I think it is time that we start researching and talking about these women. My last statement is that the pre-independent India deserves that these daughters are discussed more because they put down their everything to bring home independence. The post-India independence India deserves it because the ink with which we wrote in the preamble, sovereign, socialist, secular, democratic and republic, was drawn from the blood of these heroic women who remain unknown, unwept and unsung. With this, I conclude my paper. I thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite our resource person, Professor Sarika Dubey, ma'am, to kindly say a few words with a PowerPoint presentation. Ma'am, please welcome her with a huge round of applause. Good afternoon, everyone. Respected Chairperson, Professor Anurag Kumar, Professor Ashima Ghosh, Principal, General Private University College, Professor Neema Singh, Professor Prashant Ghosh, Utpal जी और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है role of various organizations, institutions in Indian national system. सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर आशुतोष घोष जी को बहुत धन्यवाद करूंगी कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने इस विषय का चयन किया और इसके माध्यम से हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करने का न सिर्फ एक अवसर मिला बल्कि हम उनको उनकी कार्यों को एक्नॉलेज करके फिर से एक अपनी ट्रिब्यूट दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपका विषय है, मैं बात करूँगी रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हम इस जर्नी को देखेंगे कि महिलाओं का क्या रोल था भारत के स्वाधीनता संग्राम में और क्या संगठनों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
जब भी बात आती है फिर से रोई, तो प्रायः ये देखा जाता है कि महिलाओं के कार्यों की तुलना वुमन उनके साथी या पुरुष सहयोगियों के साथ या उस समय के जो हमारे सोसाइटी के सेटअप है उससे कंपेरिजन होता है कि किस तरह का कार्य किया गया है। लेकिन आप इसको इस दृष्टि से देखें, क्योंकि ये कंपेरिजन कुछ नहीं है इतिहास में। जब भी कोई आंदोलन हुआ है, जब कोई भी मूवमेंट हुआ है, कोई भी म्यूचुअली हुई है, उसमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों ने बराबर से सहभागिता की है। अगर वो घर की दहलीज के बाहर युद्ध लड़ रहे होते हैं तो महिलाएं घर के अंदर एक युद्ध लड़ रही होती हैं। अगर वो प्रत्यक्ष रूप से सामना कर रहे होते हैं तो महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध का हिस्सा बनी होती हैं। और कई बार तो उनको खड़े रहने का जो संबल होता है, जो सामर्थ्य होता है, वो बिहाइंड द कर्टेन प्रोवाइड करती है। इसलिए आज हम उन बहुत सी छुपी हुई महिलाओं का, बहुत से संगठनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और आज हम और आप इतनी स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। इस अमृत काल को अगर हम देखेंगे, इसको 3 चरणों में हम डिवाइड करते हैं। पहला है बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी गई है। इससे पहले महिलाओं का क्या योगदान था, किस तरह से वो राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी भूमिका निभा रही थी। दूसरा फेज हम देखेंगे 1857 के रिवोल्ट के साथ और 1885 में जब कांग्रेस का गठन होता है, इस बीच में क्या भूमिका रही, और उसके बाद कांग्रेस के गठन से हम 1947 तक देखेंगे। लेकिन कभी भी किसी के रोल को जानने और समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस समय उनकी परिस्थिति क्या थी। आप सभी को पता है इंडियन पैट्रियार्कल सिस्टम में महिलाओं के कार्य कितने सीमित थे। वो हाउस होल्ड तक लिमिटेड थे उनके कार्य, उनको इक्वल स्टेटस प्राप्त नहीं था, उनको कम उम्र में विवाह हो जाता था, उनको एजुकेशन नहीं थी और उनको बहुत विवाह के बाद संतान का दायित्व और घरेलू जिम्मेदारियों में बंध के रहना होता था। अगर ऐसी स्थिति में भी उस युग में आज से 200 साल पहले, 150-200 साल पहले, अगर हमारी कुछ महिलाओं ने, बहनों ने अगर अपने घर से निकलकर इस संघर्ष में योगदान दिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्हें 2 फ्रंट पे कार्य करना पड़ रहा था। पहली चीज तो एक तरफ तो वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही थी। दुनिया भर में उस समय महिलाएं संघर्ष में थी और भारत में भी ये संघर्ष बहुत तेजी से चल रहा था। वो अपने इक्वल स्टेटस के लिए, अपने राइट के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए महिलाएं संघर्ष कर रही थी। और दूसरा, उन्हें इस आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लेना था जिसमें उन्होंने बहुत शिद्दत से अपना रोल प्ले किया। अब मैं बात करूंगी 1857 के रिवोल्ट से पहले क्या ऐसी स्थिति थी। देखिए, ये परिस्थिति बच्चों जानना इसलिए आवश्यक है। यहाँ पे जो हमारी आदरणीय हमारी मैडम है, हमारी कलीग्स हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनसे ज़्यादा कहीं जानने की ज़रूरत है कि हमारे स्टूडेंट्स इस बात को समझें और महसूस करें कि किसी भी आप जब थिंकर्स को पढ़ते हैं तो उसकी परिस्थिति को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि किस सर्कमस्टांसिस में उसकी क्या थॉट आए। उसी बात को है कि हमारे यहाँ आज भी एक महिला जो इंडिपेंडेंट है, अगर वो फैमिली में है तो आप देखते होंगे उसे एक बोल्ड और एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए कभी अपने फादर से, कभी ब्रदर से, कभी हस्बैंड से पूछना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है और म्यूचुअल कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है, आज भी पड़ती है। तो आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले जब इन महिलाओं ने ये निर्णय लिया और इस तरह से वो भागीदारी हुई तो वो अपने आप में बहुत अनूठा और महत्वपूर्ण था। सबसे पहले अगर 1857 के रिवोल्ट में देखें तो हमारा मिडिल क्लास इस रिवोल्ट से बाहर था। यह जो संघर्ष था ये राजमहलों से आ रहा था। राजमहलों की जो रानियां थी वो इस नेतृत्व को कर रही थी और या तो ये ट्राइबल जो म्यूटिनीज थी उनके माध्यम से आगे बढ़ रहा था। राजमहलों का संघर्ष इस तरह से था कि जितनी भी रानियां थी जिनके पति युद्ध में अंग्रेजों से मारे गए थे, जिनकी राज सत्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, उन महिलाओं ने हथियार उठाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया।
और दूसरा वो ट्राइबल कम्युनिटी थी जो अंग्रेजों की पॉलिसी से बहुत प्रभावित थी, बैडली अफेक्टेड थी, खासतौर पर उनकी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी। 1865 की फॉरेस्ट पॉलिसी ने बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी को पूरी तरह से लैंडलेस कर दिया। उनका एग्रीकल्चर जो लैंड थी वो उनसे छीन गया और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से बेदखल कर दिया गया और उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो बॉन्डेड लेबर बन जाए। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने संगठित होकर विद्रोह किया। सबसे पहले मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करूंगी, तो इसमें हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की जो विमेन है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इसमें नाम आता है तिलका मुर्मू का। आपने सुना होगा, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जिस प्रजाति से हैं, जिस समाज से हैं, उसी से ये मुर्मू आती थी और इसने संथाल विद्रोह में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया, अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली और काफ़ी बहुत हद तक अपने इस विद्रोह को सफल बनाने में योगदान दिया। इस समय बहुत से विद्रोह हुए, पहाड़िया हुए, तबार म्यूचनी हुआ, तमिल और तांती हुआ, संथाल हुआ, मुंडा हुआ और एक और महिला थी जिसका नाम सली था। इसने ये कमांडर थी मुंडा विद्रोह में और इसने भी बहुत सक्सेसफुली इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। उसके बाद ये कैसे करते थे, ये महिलाएं दो तरह से काम करती थी। ये स्मगलिंग जो आर्म्स का होता था, जो हथियारों को स्मगल करने का काम किया। इन्होंने अपने स्टमक पर एक कार होता था जिसे ये बांधती थी और अपने आप को ये शो करती थी अंग्रेजों से बचने के लिए कि दे आर प्रेग्नेंट, और उसके माध्यम से ये हथियारों को सप्लाई करती थी एक जगह से दूसरी जगह। अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इन ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन्स ने। उससे पहले तक हमारे समाज का जो मिडिल क्लास था उसकी महिलाएं इस संघर्ष से दूर थी, लेकिन अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष में ट्राइबल कम्युनिटी ने बहुत योगदान दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी चेतना और जन जागृति लोगों में फैली और बातें बाहर तक भी गई कि किस तरह ये शोषण कर रहे हैं। मोगरी ओरान का नाम अगर आपने सुना हो तो ये वो महिला थी जो एक ब्रिटिश ऑफिसर के यहाँ रह के काम करती थी और सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को पास कराया करती थी। अब इसके बाद मैं बात करूँगी वुमेन रूलर्स की हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये कौन रूलर्स थे? अगर आप देखिए तो 1857 से पहले 70s की बात करें तो सिर्फ वुमेन लीडर्स थी, जो रानियाँ थी, उन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया। क्वीन वेलू नचियार, जिसे झांसी की रानी तमिल की कहा जाता है, तमिल की पहली महिला रानी थी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाली भी फर्स्ट वुमन थी। भीमा भाई होलकर, ये अहिल्याबाई होलकर की ग्रैंड डॉटर है और इंदौर स्टेट से बिलोंग करती है। इन्होंने कर्नल मैल्कम को गुरिल्ला वॉरफेयर में पराजित कर दिया था और उन्हें भगा दिया था। इसी के बाद नाम आता है कर्नाटक की कित्तूर की रहने वाली राजा मल की विडो चेन्नम्मा का, जिन्होंने भी अपने प्रयासों से अंग्रेजों को सशस्त्र संघर्ष में करारी शिकस्त दी। इसके बाद ये वो महिलाएं थी जिन्होंने कि इसके अलावा और भी थी, बेजाबाई, रानी जिंदल कौर, तांतेबाई, ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, लेकिन ये सब रानियां थी। इसके बाद हम आते हैं फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारी महिलाएं 1857 का रिवोल्ट, आपको पता है मेरठ से ये रिवोल्ट शुरू हुआ, इसकी कैसे शुरुआत हुई। इस रिवोल्ट में जो महिलाओं ने काम किया उसमें रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल और जीनत महल का बहुत नाम आता है। रानी लक्ष्मीबाई से आप सभी सुपरिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। झलकारी बाई इन्हीं की सेना में एक सेनापति थी, एक टीम को लीड कर रही थी और रानी को उन्होंने बहुत सहायक किया। ये काफ़ी कुछ रानी से मिलती जुलती शक्ल की थी और इन्होंने अंग्रेजों को गुमराह किया था। उसके बाद हम आते हैं इस मूवमेंट के बाद हमारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस या वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सोशल रिफॉर्म जो हमारे चल रहे थे देश में, जो रिफॉर्मर्स थे हमारे, उनके द्वारा समाज में क्या बदलाव आया। देखिए, सिर्फ दो फाइट नहीं होती कि हमारी नेक टू नेक फाइट हो गई, सीधे अस्त्र शस्त्र उठाया और लड़ाई लड़ ली। एक लड़ाई और थी जो लोगों को अवेयर कर रही थी। भारत की इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े स्तर पे लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था और इसमें हमारे जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो हमारे रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, इनका बहुत बड़ा रोल था।
राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया और सत्यशोधक समाज के द्वारा उन्होंने लड़कियों को, स्त्रियों को बहुत जागरूक किया। इन्होंने अलग अलग समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनकी स्थापना की, जिनके कई स्तर पर कार्य हो रहे थे। महिलाओं की शिक्षा पहला कार्य था, विधवाओं का विवाह दूसरा कार्य था और बाल विवाह को रोकना तीसरा कार्य था। इसी तरह सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे अवेयरनेस जिस तरह से बढ़ी, ये इसी संगठनों के कारण हो रहा था। इसी बीच कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी अस्तित्व में आए, जैसे आर्य महिला सदन, जिसको पंडिता रमाबाई ने एस्टैब्लिश किया था, मुक्ति मिशन, कृपा सदन, शारदा सदन। इन्हें फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट के रूप में जाना जाता है और इनके प्रयासों से हमारी महिलाएं अभी तक जो घर के अंदर, घर की चारदीवारी तक थी या जो मध्यम वर्ग से निकल नहीं पा रही थी, अब वो अपने डोमेस्टिक हाउस होल्ड से बाहर आकर सोशल इश्यूज पर भी बात कर पा रही थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो रही थी। और इनका रोल क्या था, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट में भाग लेती थी, रैलियों का हिस्सा बनती थी, ये बॉयकॉट करती थी। इस तरह से ये विरोध प्रदर्शन, आंदोलन के द्वारा अपने राजनीतिक और महासंग्राम जो चल रहा था उसमें हिस्सा निभा रही थी। इसके बाद और भी ऐसी हैं, कुछ हमारे संगठन हैं, विंग्स हैं, जैसे महिला सेवा समिति, प्रयाग महिला समिति, भारत महिला परिषद और सबसे महत्वपूर्ण भारत स्त्री मंडल, जिसे सरला देवी चौधरानी ने चलाया था। और कांग्रेस में, खास तौर पे कांग्रेस में उन्होंने महिलाओं के मुद्दे को उठाया और महिलाओं की बहुत सी मांगें रखी। उनकी स्पीच के लिए वो कांग्रेस में जानी जाती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारा जो कॉलोनियल रूल था, उसने हमारी महिलाओं की बात सुनने को वो विवश हुए और बहुत सारे प्रयास, महिलाओं के हित में कानून भी बनाए गए। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल स्तर पे बने, वो मुख्य रूप से द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन था, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन था और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWC, जिसे आप आज भी सक्रिय देखते हैं। दिल्ली में इसकी विंग है और इलाहाबाद में भी है, प्रयागराज में भी है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस तरह के आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि हमारा एक्ट ऑफ 1919 ने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट जो हमारा था, उसमें राइट टू वोट दिया और स्टेट लेजिस्लेशन में इनको वोट का अधिकार प्राप्त हुआ महिलाओं को। इसको फॉलो करते हुए ट्रावणकोर, कोचीन और मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, बंगाल ने भी इस तरह के वोट के अधिकार दिए और 1935 के एक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था भी महिलाओं के लिए की गई। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की, जो हमारा लास्ट स्टेज है, कांग्रेस एंड वुमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस में महिलाएं दो रूप से, तीन तरह से काम कर रही थी। कुछ कांग्रेस के साथ रहेंगे, कुछ कांग्रेस के बाहर रहेंगे और कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का हिस्सा बनकर। जैसे अगर कांग्रेस के साथ रहने वाली महिलाओं में हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं एनी बेसेंट का नाम है। एनी बेसेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी, आयरिश लेडी थी और वो भारत की स्वतंत्रता को प्रबल रूप से चाहती थी। उनके बहुत प्रयास थे, आप देख सकते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग। राजकुमारी अमृत कौर ने भी बहुत कार्य किया। वो सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी के साथ रही, गांधी जी की करीबी सहयोगी थी और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर रही। इसी तरह से सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू, सुचेता कृपलानी और इंदिरा गांधी ने भी वानर सेना का निर्माण किया था और वो इंफॉर्मेशंस को पास कराया करती थी। तो इस तरह की महिलाएं थी। कुछ और थी जो कांग्रेस से सीधे नहीं जुड़ी थी, लेकिन कांग्रेस में किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी, जैसे कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित। आप इनके योगदान को देख सकते हैं कि इन्होंने उस समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे और कई मूवमेंट्स का ये हिस्सा बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित UN का जो आपका UNO का जनरल असेंबली है, उसको इन्होंने प्रिसाइड करने वाली पहली महिला थी। अब हम आते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या थी। एक फ्रंट ऐसा भी था महिलाओं का जो बहुत एक्टिव था और जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। वो चाहते थे, उसी एक्सट्रीमिज्म पे विश्वास था कि अंग्रेजों को तुरंत हटाना ज़्यादा जरूरी है और बलपूर्वक संघर्ष बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए इसमें नाम आता है दुर्गा भाभी, अरुणा असफ अली, कल्पना और प्रीति दत्ता, उषा मेहता। दुर्गा भाभी, जिन्हें जो भगवती चरण वर्मा वोहरा की पत्नी थी,
ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एक क्रांतिकारी संगठन था, इसकी सक्रिय सदस्य थी और इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब 23 मार्च को फांसी दी गई थी तो इसका सबसे मुखर विरोध किया था। बाद में इनको जेल में भी डाल दिया गया। इन्होंने एक ब्रिटिश के हत्या का भी प्रयास किया। अरुणा आसिफ अली ने फ्लैग होस्ट किया। कल्पना और पीटी दत्ता ने जो सूर्य सेन से प्रभावित थी और चित्तौड़ रिवोल्ट का हिस्सा बनी, और उषा मेहता कांग्रेस के लिए साइलेंटली अंडरग्राउंड होकर सीक्रेट रेडियो का प्रसारण कर रही थी। इसी तरह मैडम भीकाजी कामा, नैनी बाला देवी, प्रीति लता वडेकर रिवोल्यूशनरी चित्तौड़ से रिलेटेड थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा। फिर फॉरेन वुमन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, मार्गरेट नोबल, जिसे हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, विवेकानंद जी के साथ भारत आई थी और इन्होंने छात्राओं की, महिलाओं की शिक्षा पर बहुत काम किया और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया और बहुत जन आंदोलन और यात्राओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवाई। मैगलिन स्लेट, जिन्हें मीरा बेन कहते हैं, और कैथरीन, जिन्हें सरला बेन कहते हैं, ये गांधी जी की बहुत बड़ी सपोर्टर थी और गांधी जी से बहुत प्रभावित थी। इन महिलाओं ने भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये अपने इंग्लैंड को छोड़कर इंडिया आई थी और यहाँ पर इन्होंने इसका हिस्सा बना और बहुत कार्य किया। इसी तरह से मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये छोटा सा पिक्चर था कि हमारी महिलाओं ने किस तरह से इस मूवमेंट में योगदान दिया, किस तरह से वो भागीदार बनी। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि शिक्षा के द्वारा, समाज सुधार के द्वारा, हर तरह से आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाकर इन लोगों ने उस समय बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हम सभी इनके आभारी हैं कि आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। थैंक यू सो मच। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। इन्होंने इतना संक्षेप में इतने बड़े टाइम पीरियड को पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया। Now I would like to request our chairperson, Professor Anuradha Agarwal ma'am, to grace the stage with few words. Respected Prashant Ghosh sir, dear Ashima, who is Principal Jagataran Degree Girls College and the convener of this national seminar, my students Sarika, Nilima, my friend and colleague who I Sonali, my colleague Sonali, who has studied with me in St. Mary's Convent, my student Utkarsh, dear students and everybody present over here. मेरे जो चेयरमैन के रिमार्क्स हैं वो तो सारिका दुबे ने ऑलरेडी दे ही दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इतने व्यापक तरीके से पूरे इस विषय को कवर किया है। पर मैं एक या दो छोटी बातें और उसमें जोड़ना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि मैं इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स, विशेषकर आशिमा को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस विषय को चुना, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के अपने नेताओं को याद ही न करें, अगर हम ये भी याद करना चाहिए हमें कि जो हम आज हैं,
जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं उस मार्ग की कल्पना उन्हीं लोगों ने की थी और इसलिए द पाथ of liberty, equality, self-reliant development was dreamt by our nationalist leaders, and they made India what it is today. So therefore, to focus on the nationalist movement is very essential as time passes by, because new generations may not be as nostalgic about the nationalist movement as we have been. Secondly, the specific topic जिन्होंने चुना है नेशनलिस्ट मूवमेंट में, द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है, इज वेरी वेरी क्रेडिटेबल, क्योंकि कोई भी आंदोलन केवल जनता के बल पे या केवल नेताओं के बल पर नहीं होता है, उसको सदैव संगठनों की आवश्यकता होती है. दे ऑलवेज नीड ऑर्गेनाइजेशंस. व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस, एज द फर्स्ट स्पीकर clearly pointed out, are the institutions which mobilize public opinion, which channelize public opinion, which unite people. This is what our nationalist organizations did. They united people and created a nation in India. And above all, they provided an ideology. Not only this, they are the ones which constantly, persistently pressurize the British government to give us independence. Without these organizations, we would not have been able to get independence in such a short while, in such a peaceful manner. So therefore, both these, I give credit to the organizers and I congratulate them for holding this seminar. Now, given this background, coming to the topic which we are discussing at the moment, the role of women's organizations. Now, these organizations, I think we can divide in two ways. The first are organizations for women created by men, started by men, and organizations started by women. And the second is what Sarika has already discussed, organizations of a national character, organizations of a regional or a local character. It is true that the first steps in women's emancipation, जो पहला कदम उठाया गया वो पुरुषों के द्वारा उठाया गया, और उसमें दो संगठन ऐसे हैं जिनकी अब अनफॉर्चुनेटली इस दौरान चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैं मेंशन करूंगी. एक है ब्रह्मो समाज, जिसने केवल सती उन्मूलन की नहीं बात की, मगर राम मोहन रॉय ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की थी, और वो था महिलाओं के संपत्ति अधिकार की बात. He wanted to give rights over ancestral property to women. और ये बात हमको 20वीं सदी में कानून के द्वारा प्राप्त हुई है. तो इसलिए जो उन्होंने 1828 में सपना देखा था, वो सपना 200 साल बाद पूरा हुआ है, 200 से भी अधिक साल बाद पूरा हुआ है. सो पहला मुद्दा उन्होंने उठाया. दूसरा, महागोविंद रानडे के नेतृत्व में प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में उन्होंने महिलाओं के, विशेषकर विधवाओं के पुनर्विवाह की चर्चा की, और उन्हीं की सहायता से पंडिता रामाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी. उन्होंने पंडिता रामाबाई की सहायता की थी. सो पहले प्रयास तो निश्चित रूप से पुरुषों के द्वारा हुए, पर महिलाएं बहुत पीछे नहीं थी, ये सबसे बड़ी बात है. और महिलाओं ने भी बहुत शीघ्र अपने संगठन बनाना शुरू किया. मैं बहुत लंबी सूची इसलिए नहीं दूंगी, बिकॉज सारिका हैज़ ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ दीज, बट ब्रीफली, द फर्स्ट सच ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1905 एट एन ऑल इंडिया लेवल. दिस वाज अ ब्रांच ऑफ द कांग्रेस. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा थी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1887 में 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापित की, और उसी से प्रेरणा लेके महिलाओं ने अपनी एक शाखा स्थापित की, जिसको भारत महिला परिषद कहते हैं, जो 1905 में स्थापित हुई. और इसमें उन्होंने पुरुषों को वर्जित कर दिया. दे डिड नॉट परमिट मेन टू सिट इन दीज सिटिंग्स. Between 200 to 700 women used to attend these meetings, and they used to discuss issues related to women. इसके अतिरिक्त सरला देवी चौधरानी ने एक बहुत बड़ा संगठन स्थापित किया, भारत
महिला परिषद के विरुद्ध, और उसका नाम उन्होंने भारत स्त्री महामंडल दिया, जो उन्होंने 1910 में दिया। सरला देवी चौधरानी was basically associated with Rabindranath Tagore. She was the daughter of Rabindranath's sister. So therefore she was greatly inspired by the nationalist movement. इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन भी थे, जैसे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जस्टिस रानाडे की पत्नी रामाबाई रानाडे ने किया, जिन्होंने 1910 में एक संस्था की स्थापना की जिसको हम लोग सब जानते हैं, जिसका नाम है सेवा सदन। इसके अतिरिक्त पंडिता रामाबाई के शारदा सदन की आप लोग के सामने चर्चा हो ही चुकी है, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। और स्वर्ण कुमारी देवी ने कलकत्ता में सखी समाज करके एक संगठन स्थापित है। इस तरह से मैं बस एक पिक्चर देना चाहती हूँ कि पूरे देश भर में छोटे छोटे और अखिल भारतीय स्तर के संगठन हुए। 3 बड़े संगठन जिनकी बार बार चर्चा होती है, विमेंस इंडिया एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया NCWI और AIWC, इनकी तो मैं बात भी नहीं करूँगी क्योंकि इनके बारे में सब लोग जानते हैं और इनकी अहम भूमिका रही है। इस प्रकार हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाएं भी संगठित होने का प्रयास कर रही थी। भले ही ये अभिजन महिलाएं थीं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं थीं जिनको विदेशी महिलाओं से संपर्क था, मगर ये आम महिलाओं के लिए काम करने का प्रयास कर रही थी। इशू यहाँ उठता है कि संगठन तो बहुत थे, महिलाएं संगठित हो रही थी, इस प्रकार के अखिल भारतीय और क्षेत्रीय संगठन स्थापित हुए, मगर इन संगठनों का लाभ क्या था? What was the use of these organizations? Why are these organizations important? ये महत्वपूर्ण क्यों हैं? मेरे अनुसार ये 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण अगेन जिसकी सारिका ने चर्चा की है वो ये था कि सबसे पहली बार महिलाएं घर गृहस्थी और परिवार वालों से अलग दूसरे परिवार की महिलाओं से मिलती थीं और सामाजिक मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श या बातचीत करती थी। और अगर हम पश्चिम का नारीवादी आंदोलन देखें तो इस आंदोलन में एक बहुत अहम कड़ी ये थी कि महिलाओं को महिलाओं के साथ बात करना चाहिए, देयर शुड बी विमेन्स ग्रुप्स, क्योंकि तभी एक महिलाओं का मत उभर के आता, देयर विल बी अ वुमेन्स ओपिनियन। और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक मुद्दों से संबंधित मत विकसित हुआ। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि पुरुषों ने इसका विरोध किया। One of the advantages that women had was that men supported these movements, men supported these issues, but at least the women also expressed their opinion on issues like the main issues that they talked about was need for women's education, ending the parda system, widow remarriage and ending child remarriage. तो ये जो सामाजिक मुद्दे थे, जो बड़े मुद्दे थे, इनको महिलाओं ने ज्यों की त्यों स्वीकार नहीं किया, पर इनके ऊपर विरोध करने का प्रयास किया। दिस वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट consequence of these organizations. The second important consequence, दूसरा महत्व, इन संगठनों में जिन महिलाओं ने भाग लिया वो धीरे धीरे सार्वजनिक कार्य में, पब्लिक लाइफ में, राजनीतिक कार्य में सक्रिय होने लगी। और ये एक चांस की बात नहीं है कि इनमें से कई महिलाओं ने भविष्य में भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे एक महिला है अम्मी स्वामीनाथन, जो विमेंस इंडिया एसोसिएशन की ऑनररी सेक्रेटरी थी। ये हमारे संविधान सभा की सदस्य बनी। इसी प्रकार रेणुका रे थी, जो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की सभापति थी। शी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसके अलावा बहुत सारी और महिलाएं जिनको आप जानते हैं,
जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में स्वतंत्र भारत में भी एक अहम भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू हुई, सुचेता कृपलानी हुई और व्हाट हैव यू, बहुत सारे नाम हैं, इन सब नाम को गिनवाने की जरूरत। सो द सेकेंड वॉज दैट दे वर प्रिपेयरिंग फॉर लीडरशिप बाय बीइंग पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। वो नेतृत्व ग्रहण करने के लिए तैयार हो रही थी और उन्होंने नेतृत्व ग्रहण किया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, उन्होंने मतदान के लिए आंदोलन किया, राइट फॉर ऑफ विमेन टू वोट इन इलेक्शंस। नाउ अनफॉर्चुनेटली 1917 में मॉन्टेग्यू के सामने सरोजनी नायडू ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, विमेंस इंडिया एसोसिएशन एक रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा था पर वॉज नॉट परमिटेड। भारतीय स्त्री महामंडल ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्हें भी परमिशन नहीं दिया। और महिलाओं को वोटिंग राइट्स प्राप्त हुए परंतु बड़े सीमित रूप से। एंड द लिमिटेड फॉर्म वाज दैट इवन इन 1937 जो लास्ट इलेक्शंस हुए हमारे यहाँ, वहाँ पर केवल विवाहित महिलाओं को ही वोटिंग राइट्स था, यानी वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार था जिनके पति को वोट देने का अधिकार था। मगर कहीं ना कहीं ये दबाव अवश्य काम किया, तभी हमारे संविधान में हम लोगों ने बराबरी से हम लोगों को मत देने का अधिकार मिला। ये सब बातें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हमारी महिलाएं निष्क्रिय थीं, दे वर पैसिव, दे वर लिविंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, और गांधी जी ने आह्वान दिया और सब सड़क पे उतर गई और सब ने आंदोलन किया। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि इस आंदोलन का बैकग्राउंड इन महिला संगठनों ने किया, जिनके प्रेरणा से, जिनके प्रयासों से महिलाएं धीरे धीरे अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति सचेत हो रही थी। और शायद इसीलिए गांधी जी के आह्वान पे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में काम किया। इन दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ और मैं पुनः इस सेमिनार के आयोजकों को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। My water is ready now. Thank you so much, ma'am. Now I would like to call upon the stage Preeti ma'am to deliver a vote of thanks by concluding with few lines. संभव है सब कुछ, संभव है सब कुछ, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है सब कुछ, असंभव कुछ भी नहीं। नारी अपने पर आ जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नारी अपने पर आ जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। थैंक यू रिया जी, आपने ये मौका दिया। आज इस सेमिनार के द्वितीय सत्र के आयोजन में उपस्थित प्रोफेसर अनुराधा अग्रवाल मैम, डायरेक्टर सेंट्रल ऑफ वीमेंस स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एवं प्रोफेसर सारिका दुबे मैम, कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ, आप दोनों लोगों का, यानी ऐसी विद्वान वक्ताओं के सारगर्भित विचारों से हम सभी को अभिसिंचित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में हम अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानते हुए आपकी उपस्थिति हेतु कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन की पारंपरिक शैली को भूल सी गई। ये क्या ऐसा प्रस्तुत करूं कि मुझे लगे कि मैंने अपने बीच अपनी विद्वान एवं अनुभवी वक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत सारगर्भित विचारों हेतु उन्हें भरपूर धन्यवाद प्रस्तुत किया। जैसा कि अनुराधा मैम ने जो अपने वक्तव्यों में सबसे पहले जो महिलाओं के बारे में, यानी उन्होंने, उनकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि महिलाओं को महिलाओं के साथ बात करना चाहिए। वैसे तो महिलाएं
महिलाओं के साथ क्या सबके साथ बात करने में सक्षम है। और आप दोनों लोगों के विचारों को देखते हुए, जैसा कि महिलाओं के लिए ही इनका जो विचार है, जैसे सारिका मैम ने बताया कि कब से महिलाओं ने, यानी महिलाओं का रोल कब से शुरू हुआ, जो कि 1857 से माना जाता है। और मैम ने उन चीज़ों पे प्रकाश डाला, यानी ये अवगत कराया कि महिलाओं को की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा कि महिलाओं की शुरुआत बड़े घरानों से, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू जी का दिया कि इनके जो परंपराओं से, यानी इनके द्वारा इनके जो जातियों से, ट्राइबल से जो शुरुआत हुई है, इनका योगदान हुआ। तो राजघरानों से शुरू हुई या तो उन महिलाओं से शुरू हुई, जैसा कि वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ये आप दोनों लोगों का बहुमूल्य समय, आप लोगों ने जिस तरह बहुमूल्य समय दिया, आप दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैम भी काफ़ी व्यस्त होते हुए भी यहाँ पे उपस्थित होकर अपना बहुमूल्य दिया, और प्रोफेसर सारिका दुबे मैम लखनऊ से चलकर यहाँ आके हमारे इस संगोष्ठी को बढ़ाया है। अपने जो उन्होंने इस संगोष्ठी में अपना योगदान दिया है, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। आपके द्वारा प्रस्तुत विषयों पर गूढ़ चिंतन से हम सभी को अपने इतिहास को देखने की एक नई दृष्टि मिली है। इसके अतिरिक्त मैं ईसीसी परिवार के प्रिंसिपल डॉक्टर एएस मोजिस को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके सहयोग से ये सेमिनार सफल होता जा रहा है। और आगे के क्रम में मैं वाइस प्रिंसिपल एवं डीन ऑफ आर्ट डॉक्टर ज्योतिका राय मैम को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनका समय समय पे सहयोग मिलता रहा है। यानी इस तरह के आयोजन में मैं सोनाली मैम को भी विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि उनके डांट से, उनके प्यार से हम लोगों को और भी सीखने को मिलता है, और वो अपने नई चीज़ें हम लोगों को बताती रहती हैं, सिखाती रहती हैं। धन्यवाद मैम, आपने भी अपना पूरा समय हम लोगों को दिया, और इस आयोजन को सफल बनाने में आपका भी प्रयास रहा। अब आगे के क्रम में यानी उमेश सर, डॉक्टर उमेश सिंह सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जब भी हम लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है, सर का सहयोग हमेशा रहता है। आगे के क्रम में मैं डॉक्टर प्रशांत सर, आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने भी अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया, और इस आयोजक, और सबसे विशेष रूप से मैं इस आयोजक की कन्वीनर या इस आयोजक को करने वाली प्रोफेसर आसिमा घोष को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन से और अपने सतत प्रयास से यह आयोजन को आगे बढ़ाने में, या इस आयोजन, उन्हीं के प्रयासों से ये आयोजन हो पा रहा है। यहाँ पे उपस्थित ईसीसी परिवार के तरफ से जितने भी इस डिस्कशन में या जो पेपर प्रेजेंट किए हैं, उनको मैं भी धन्यवाद देती हूँ। जैसे शिव प्रताप राय सर, डॉक्टर अंजलि शिवहरे, डॉक्टर रामा एवं अनुश्री पांडे को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की सक्रिय भागीदारी से हम सबको एक बौद्धिक प्रोत्साहन मिला है। यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राओं को भी मैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी अपना पूरा समय यहाँ पे दिया, यानी उन्होंने भी जो अपने सामाजिक ज्ञानार्जन की श्रृंखला को ऐसे ही अनवरत करते रहे। कार्यक्रम की संचालन की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली मिस रिया दुबे को भी धन्यवाद देती हूँ, और इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, जैसे सबसे पहले मैं अंकिता मैम को इसमें देती हूँ कि उनका सहयोग सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कॉलेज को भी देखा, इस कमेटी को भी, उनका जितना भी टेक्निकल कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने सहयोग दिया। और इसी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में प्रशांत वर्मा,
सूर्य प्रकाश अग्रहरी, अजीत जी, इन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि बिना आप लोगों के सहयोग के ये कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से शायद न हो पाता। और लास्ट में मैं देवेंद्र सर को धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा ये कार्यक्रम सफल बनाने में जो अनवरत उनका प्रयास था, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और पुनः मैं एक बार यहाँ उपस्थित अनुराधा मैम, डॉक्टर सारिका मैम एवं नीलिमा मैम, आपको भी मैं बहुत कोटिशा धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी अपना समय दिया, अपना बहुमूल्य देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। थैंक यू। मैं कंक्लूड कर दूं। इस टेक्निकल सत्र में चेयरपर्सन प्रोफेसर अनुराधा मैम और रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर सारिका दुबे, आप लोगों का आगमन इस सत्र की सफलता का राज है। हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप लोगों ने अवगत कराया। कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी जो सदस्य हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही ब्रीफली अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता जो है वो सब के लिए है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स का नहीं है, पार्टिसिपेंट्स का भी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र के बाद कुछ लोग जिनका पेपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, उनको बहुत ही ब्रीफ समय दिया जाएगा। 3-3 मिनट में अपने एब्स्ट्रैक्ट को बताने का समय दिया जाएगा। तो ये सत्र समाप्त हो रहा है और सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन का जो सत्र है वो शेष रहेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप बहुत ही ब्रीफ अपना एब्स्ट्रैक्ट को प्रेजेंट करेंगे। 3 मिनट आप देख रहे हैं, 4:30 का समय हो रहा है। हमारे भी सीमाएं हैं, क्योंकि कल फिर फुल डे सेशन है, 2 सत्र और वैलिडिक्ट्री, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। सो प्लीज़ कोऑपरेट। माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु आर वेटिंग टू वेरी ब्रीफली मेक योर प्रेजेंटेशन इन 3 मिनट्स। एग्जैक्टली 3 मिनट में आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट समाप्त करना है, सो दैट वी कैन वाइंड अप टुडे एंड मेक प्रिपरेशंस फॉर टुमारो। सारे लोग सुबह 7 बजे से हैं, रात को 1 बजे तक, 1:30 बजे तक जगे हैं, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा रेस्ट देने की आवश्यकता है और कल का प्रिपरेशन भी करना है। तो जो शेष हैं वो अपनी तैयारी रखें। और पुनः थैंक्स मैं देना चाहती हूँ जो इस सत्र में उपस्थित है और अभी वो जाना मांग रहे हैं। सो आई शैल आस्क द प्रेजेंटर्स टू वेट फॉर एंड मेक देयर प्रेजेंटेशन वेरी ब्रीफली। सो नेक्स्ट सेशन विल बिगिन जस्ट आफ्टर 2 minutes. ओके, थैंक यू सो मच। अजीत भैया आपका इसी में अभी होगा पेपर प्रेजेंट ना, आपका करा दें? हाँ मेरा करवा दीजिए। और जाते समय क्या नाम है हमारा, वही हम दोनों लोग एक ही साथ हैं, हम लोग सब पार्टी पे मैडम लोग सब चली गई। कौन? मैडम लोग सब चली गई। आपके चेयरपर्सन बैठे हुए हैं, कहाँ गए?
कहाँ गए रुचि हमारे? मिश्रा और रत्नेश मेरा यादव। तो आज की है, इनका तो आज था ही। ये है रत्नेश यादव। रत्नेश कुमार यादव। पहले इनका बोलिएगा इसके फिर बाद मेरा हाँ, बोलिएगा। हाँ। फायदा क्या है? फायदा पहले आप ही का बोलते क्या? मेरा पहले है ही है ना, इनका मतलब पहले मेरा से आज ही की लिस्ट में 4 से इनका 5 है। आज ही की लिस्ट में था ही। नहीं नहीं, वो हम समझ गए, तो आपको पहले उस पर बोलना है। हाँ, आपको हाँ। पहले नंबर पे इनका बोलेगा, सेकंड पे मेरा। ठीक है, और कोई आ गया? नहीं, नहीं बहन आज्ञा क्या है, वहाँ पे हम लोग खुद ही आज्ञा लेने के लिए आए हैं कि हम नहीं, बोल नहीं। दें, क्योंकि मेरा कल का था और आज मैं आज परमिशन ले रही हूँ। बट कल सर्टिफिकेट लेने आपको आना पड़ेगा, अभी सर्टिफिकेट छपा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। और मैम का जो हमारे किट वगैरह था, तो आज मैं जाऊँगी उधर, उस समय कल अगर किट मैं मिल गया है? नहीं अभी नहीं मिला मेरा। अच्छा, तो वो मिला है, मेरे मैं से ही बोल- मिलेगा, हाँ हाँ। वो आपसे ही मिलेगा। तो वो हमारे भाई बैठे हुए हैं, मान लीजिए अगर कल मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊँगी तो उनको सर्टिफिकेट मिल तो जाएगा। आप उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, मेरे से कांटेक्ट करेंगे तभी मिल पाएगा। मैं ठीक बता है, दूँगी। और उनको साइन करना पड़ेगा, रिसीविंग उनको हाँ, लेना हाँ, पड़ेगा। बस 2 मिनट वेट करिए, चेयरपर्सन आ जाए तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। एक्चुअली मैम 3 ही मिनट टाइम मिलेगा। शॉर्ट ना बोल दो ना। ठीक है। हिम्मत ये गलत हुआ। आई वाज थिंकिंग, जी सर ने कहा था 7 से 8 मिनट आपको मिलेगा। 5 से 7 मिनट तो ऑफिशियली बोला गया था। यस मैम, आई प्रिपेयर्ड 7 पेजेस। 7 पेजेस क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? जो तुमने उसमें बोला ना, एब्स्ट्रैक्ट मैंने जो भेजा था, उसको शॉर्ट में निपटा दो। मैम आई वाज थिंकिंग टुमारो। कल कर लो। ठीक है। मैम कल कितने बजे से टाइम मिलेगा? कल भी वही 9-10 बजे हम शेड्यूल फॉरवर्ड कर देंगे तुम्हें। ठीक है। बस आपसे एक फेवर चाहिए। हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन इसको हटा दे रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं। देखो शॉर्ट में प्रिपेयर कर दो, क्योंकि देखो सब थके हुए हैं ना, हम लोग सुबह से आए हुए हैं या मैम, और सबका लेट हो रहा है ना, सब बहुत लंबा बोल रहा है। ठीक है, यस मैम। तो देख लो। बहुत शॉर्ट में बोलना, वरना फिर ना यहाँ से हमें बुलाना पड़ेगा। आशीष, मैम बुलाना फिर अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो कह रहे हैं, पहले से बता दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन बोल दो, फिर डायरेक्ट कंक्लूजन बोल दो, काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कंक्लूजन पे आ जाओ। मैम आपकी सवाल इम्पोर्टेंट इसको। इंपॉर्टेंट छोड़ो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। काम भर का तुमने बोला, तुम्हें देखो कॉन्फिडेंस चाहिए ना 50 लोग के सामने बोलने का। Exactly. ठीक है, तो तुम 4 लाइन बोलो चाहे 10 लाइन बोलो, जिस कॉन्फिडेंस साथ बोलोगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैम सर्टिफिकेट आज ही मिलेगा? सर्टिफिकेट आपको कल मिलेगा, कल आपको फिर आना पड़ेगा। मैम आज ही करते हैं बोलते। मैम यहाँ पे बोलना पड़ेगा, यहाँ पे। अच्छा मैम पेज यूज़ कर सकते हैं? यही पेज ले आना ऊपर, यस मैम, यही लिया है। अब देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में बोलना, वरना मुझे हटाना पड़ेगा तुम्हें। मैम आज आप निर्दयी हो जाएंगे फिर। क्या करें, हमेशा दया दिखाना अच्छा नहीं है ना। मैम ये होगा सिग्निफिकेंट फीचर रविन्द्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सिंह का अध्ययन कर सकते हैं। जितनी जल्दी बोल सकते हो। अब इतना स्पीड नहीं बोलेंगे कि 3 मिनट ले लो। 3 मिनट आई थिंक इट विल बी बेटर। ठीक, अच्छा पानी वानी पी लो, पीना हो तो। इतना भी डर नहीं लग रहा है। सर चेयरपर्सन वगैरह कहाँ गए? जी चेयरपर्सन वगैरह कहाँ गए? अभी आ रहा है। पेपर प्रेजेंट शुरू कर दे क्या? बताओ, बुलाना पड़ रहा है। मैडम आइए, वो मैम से, अनुराधा मैम से मिलना था ना, अनुराधा मैम से हम नहीं मिल पाए। अब मिल लिए, इसीलिए बाहर खड़ा नहीं। मेरा बट यू आर डूइंग गुड। बिजी थे इसलिए अच्छा लग रहा है। यहाँ से इतना फील लेने दो, यहीं पे बोलना है हम लोग को। कितना पास रखें तो सही रहेगा। यहाँ आ जाओ या तो यहाँ आ जाओ, ये दोनों ऑप्शन है। हाइट ठीक है, नहीं तो हाइट ठीक है, तो ऐसे ही रखते हैं। दोनों ऑप्शन दिया गया ना, जैसे कुछ लोग दिख ही नहीं रहे स्पेस।
अच्छा अच्छा, ये क्या है? तनु जी, तनुश्री। तनु श्रीवास्तव है ये। अच्छा, मेरा उसके बाद शॉर्टकट है। हाँ 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 हाँ। सबको कंफर्म करेंगे तब हो गया ऑफ है ना? काम। अच्छा, कितना पास रखती है तुम्हारी आवाज़, कितनी सही आती है। कुछ लोगों की बहुत हाई जा रही थी, तो कुछ एक्चुअली मुझे माइक का आइडिया है कि मुझे कितना दूर हाँ, रहना तो है। बताओ ना कितनी दूर रहती है। यहाँ यहाँ आओ, आगे आओ और बस। झुकना पड़ेगा, कमर टूट जाएगी। चेयरपर्सन आपको यार सिर्फ 9 लोग हैं। तो 9 कम है क्या? बहुत शॉर्ट में निपटाने में अमृता, वरना मुझे बजर दबाना पड़ेगा बिल्कुल से। 5 मिनट दोगे? 5 3 मिनट दोगे? गुड इवनिंग एवरीवन। आगे हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हुए ऑफलाइन पेपर प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर उत्कर्ष उपाध्याय सर टू कम अप ऑन द स्टेज। सर बत्ती आएगी आज? Dr. Utkarsh Upadhyay sir, former HOD Political Science, Professor Rajendra Singh Rajubhaiya University. His specialization is political theory, South Asian studies. He has got 19 of his papers published. He is also a member of Academic Council, member of NAC, Assistant Proctor, Coordinator, Community Development Policy Cell. Now I would like to request Dr. Shiv Pratap Rai sir to come up on the stage. Dr. Shiv Pratap Rai sir, Assistant Professor, Department of Political Science, SGN PG College, Mohammadabad. I would like to request our volunteers to present a bouquet to Dr. Utkarsh Upadhyay sir. I would like to request a volunteer to present bouquet to Dr. Shiv Pratap Rai sir.
पेपर प्रेजेंटेशन के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द प्रेजेंटर्स रत्नेश कुमार यादव। टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 मिनट में अपने पेपर को प्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक। मैं रत्नेश कुमार यादव, सदर छात्र संस्कृत विभाग, जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज। ठीक। मैं रत्नेश कुमार यादव, सदर छात्र संस्कृत विभाग, जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रयागराज। मेरा शोध का विषय है स्वतंत्रता संग्राम में महिला संगठनों की भूमिका भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में। भारत में शिक्षा के प्रसार और नई महिला की धारणा की स्थापना के परिणाम स्वरूप महिला संगठनों का उदय हुआ। महिलाओं के बीच संचार के स्तर में सुधार हुआ, जिससे उन्हें उन विभिन्न समस्याओं के बारे में पता चला जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, और समाज में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता चला। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय महिला धर्म युद्ध की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि महिलाओं की मुक्ति के शुरुआती प्रयासों को पुरुषों द्वारा गति प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं की पारंपरिक अधीनता को चुनौती दी, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और अन्य मुद्दों के साथ साथ महिला शिक्षा और धर्म के मामलों में निष्पक्षता का समर्थन किया। सामान्य सुधारों संघों की महिलाओं की संस्थाओं ने भी महिलाओं के लिए सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने, राय व्यक्त करने और अनुभव साझा करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य किया। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की भारतीय महिला परिषद ऐसे अवसरों में सबसे आगे थी। हालांकि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी बैठक में किया गया था, लेकिन महिला परिषद की शुरुआत 1905 में हुई थी। इन पहलों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया। स्वतंत्रता पूर्व काल में महिलाओं के मुद्दे विभिन्न मोड़ों पर राष्ट्रवादी एजेंडे से संबंधित थे। इस अवधि में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में महिलाओं की एक बड़ी वृद्धि हुई। आंदोलन को संगठित करने और उनमें भाग लेने के अवसरों ने महिलाओं को बहुत आवश्यक आत्मविश्वास और अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करने का मौका दिया। इस काल में सामाजिक सुधार आंदोलन एवं राष्ट्रवादी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रारंभिक महिला संगठन इस प्रकार बने, जिसमें से पहला संगठन था महिला भारत संघ WIA, दूसरे संगठन के बारे में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, और तीसरा संगठन 1917, 1925 और 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन प्रस्तावित हुआ। इनमें से प्रत्येक संगठन ने महिलाओं की प्रगति में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, जिसने पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकारों की अनुमति दी। वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा और राजनीतिक कार्यालयों में प्रवेश का अधिकार जैसे अधिकारों से महिला समूह में संतुष्टि आई। भारतीय महिलाओं के हितों का समर्थन करने के लिए कई महिला संगठन जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन 1954, समाजवादी महिला सभा 1559 का गठन हुआ। महिलाओं का राष्ट्रीय गठबंधन महिलाओं के राष्ट्रीय वेब का एक प्रस्तावित है। यह संबद्धता या सदस्यता उदार विचारधारा वाले महिला समूहों, संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, महिला श्रमिकों, महिला संघों, व्यक्तित्व और अन्य लोगों के लिए खुली है, जो नावों के सिद्धांतों और उद्देश्यों और मूल्यों को साझा करते हैं। धन्यवाद। Thank you so much. The next paper presenter is Ruchi Mishra. मैं रुचि मिश्रा, जगत तारण महिला महाविद्यालय से। हमारा विषय है स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज के विचारों का प्रभाव।
आधुनिक भारत के चिंतक, आदि निर्माता, स्वराज और स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले स्वामी दयानंद अपने गुरु बिरजानंद की प्रेरणा से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 सन 1857 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। एक भारत की प्राचीन परंपरा को पुनः स्थापित करने, भारतीयों को उनके प्राचीन महान परंपरा से अवगत कराने, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना इनका उद्देश्य है। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। स्वामी दयानंद जी का ये मूल्य वाक्य था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारी संस्कृति और हमारे समस्त ज्ञान का कोष हमारे वेद ही है। भारत को जिस तरह ब्रिटिश सरकार का आर्थिक उपनिवेश और बाद में राजनीतिक उपनिवेश बना दिया गया था, उसके विरुद्ध भारतीयों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। चूंकि भारत धीरे धीरे पश्चिमी विचारों की ओर बढ़ने लगा था, अतः प्रतिक्रिया सामाजिक क्षेत्र से आना स्वाभाविक था। यह प्रतिक्रिया 19वीं शताब्दी में उठ खड़े हुए सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में सामने आई। ऐसे ही समाज सुधार आंदोलन में आर्य समाज का नाम आता है, जिसका मूल्य वाक्य कृण्वन्तो विश्वमार्या, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। ये आधुनिक भारत में प्रारंभ हुए पुनर्जागरण को नई दिशा दी, साथ ही भारतीयों में भारतीयता को अपनाने, प्राचीन संस्कृति को मौलिक रूप से स्वीकार करने, पश्चिमी प्रभाव को विशुद्ध भारतीयता यानी वेदों की ओर लौटो के नारे के साथ समाप्त करने तथा सभी भारतीयों को एकताबद्ध करने के लिए प्रेरित किया। सन 1857 के पश्चात की क्रांति के जन्मदाता महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो क्रांतिकारियों के गुरु थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सेनापति पापड़, मदन लाल धिंगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार भगत सिंह आदि इत्यादि शिष्यों ने स्वाधीनता आंदोलन से पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्य समाज के ही प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के भीतर स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। स्वतंत्रता पूर्व काल में हिंदू समाज के नवजागरण और पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में आर्य समाज सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन हुआ। यह पूरे पश्चिमी और उत्तर भारत में सक्रिय था, सुप्त हिंदू जाति को जागृत किया। यहाँ तक कि फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, दक्षिणी अफ्रीका में भी हिंदुओं में समानता के भाव जागृत किया। आर्य समाज की स्थापना के बाद ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद हुआ, जैसे जातिवाद, जड़मूलक समाज को तोड़ना, महिलाओं के लिए समानाधिकार, बाल विवाह का उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन, निम्न जातियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त कराना स्वामी जी का विचार था। जनता का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने तथा उनके अस्तित्व की रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन था। आर्य समाज के विचारों की छाप इतनी अमिट पड़ी कि वह न केवल स्वतंत्रता संग्राम बल्कि संस्कृति, भाषा, धर्म, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी रहा। आर्य समाज का प्रमुख क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी भाषा में लिखकर हिंदी को प्रतिष्ठा प्रदान की। आर्य समाज शिक्षा, समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता का आंदोलन था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 85% आर्य समाजी थे। स्वदेशी आंदोलन का मूल सूत्रधार आर्य समाज ही है। वर्तमान समय में नमस्ते शब्द का प्रयोग हम बहुत साधारणतया करते हैं। यह नमस्ते शब्द आर्य समाज में अभिवादन के लिए प्रयुक्त होता था, जिसका आज हम खूब बढ़ चढ़कर प्रयोग करते हैं। भजनीक अमित चंद्र की कुछ पंक्तियां हैं कि जो स्वामी दयानंद को बहुत प्रिय थी। अगर देश उपदेश हमें ना जगाता तो देश उन्नत का किसे ध्यान आता, जो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। पार्टिसिपेट से ये रिक्वेस्ट है कि आप हेलो पार्टिसिपेट से ये रिक्वेस्ट है कि जब उनको 2.5 मिनट में बोल दिया जा रहा है कि अब कंक्लूड करना है, तो प्लीज़ आप जो है आपको लगभग 30 से 45 सेकेंड और मिलेंगे, तो कृपया इस चीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू। Now I would like to request Vikas Kumar. इस सुंदर सेमिनार की कन्वीनर प्रोफेसर अशिमा घोष मैम,
सभा कक्ष में उपस्थित सभी प्रोफेसर, आदरणीय प्रोफेसर गण एवं शोधार्थी साथियों, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध कार्य में संलग्न हूँ। मेरा जो विषय है औपनिवेशिक कालीन भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद के विचारों में वर्णित सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर उसका प्रभाव। अगर मैं अपने टॉपिक की बात करूं तो इसमें 3 मुख्य बिंदु है जिन पर मेरा पूरा शोध प्रपत्र केंद्रित है। पहला तो है स्वामी जी का जो है सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद, और दूसरी बात है कि उसका स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव है। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है भारत के एक युग पुरुष हैं, और उनका जन्म जब हुआ है तब भारत जो है ब्रिटिशर्स की जो है गुलामी में बंधा हुआ है। उस समय भारत में जो है बहुत अराजकता का माहौल है। भारत पूरी तरीके से जो है पतोन्मुख अवस्था में, उसका संस्कृति, शिक्षा, गौरव सब कुछ जो है पतन की अवस्था में है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में जो राष्ट्रीयता के उदय को लेकर जो इतिहासकारों की जो अवधारणाएँ हैं, उनकी बहुत सारी अवधारणाएँ अलग अलग हैं। कुछ इतिहासकार जो है किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर राष्ट्रवाद को देखते हैं, कुछ इतिहासकार किसी संगठन से जोड़कर राष्ट्रवाद के उदय को देखते हैं। लेकिन ये 1857 के बाद एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम राष्ट्रवाद के उदय को किसी एक विशेष संगठन या किसी विशेष पुरुष से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो उदय है 1857 से लेकर के, इसमें बहुत, उससे पहले भी बहुत सारे जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों का उसमें हमको योगदान दिखाई देता है। जैसे राजा राम मोहन राय, इसके बाद केशव चंद्र सेन इत्यादि स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रवाद की अलग जगाई, जिसे स्वामी विवेकानंद ने फाइनली जो है संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाया। स्वामी जी ने 1893 में जो है शिकागो धर्म संसद के माध्यम से जो है भारत को जो है विश्व में जो है महिमा मंडित किया, और बताया कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति जो कितनी प्राचीन है, कितनी गौरवशाली है। अगर हम बात करें उनके विचारों में राष्ट्रवाद की, तो एक फ्रांसीसी चिंतक है रोमारोला ने जो है स्वामी जी की जीवनी लिखी है। रोमारोला ने रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा कि वो भारत के बारे में जानना चाहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा उनको कि अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को जानना चाहिए। तो रोमारोला ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखी। उन्होंने लिखा कि स्वामी जी के जो है जो संदेश हैं, जो उनके व्याख्यान हैं शिकागो वृत्तांत के बाद, तो उसमें उनके व्याख्यानों में हमको दोहरे अर्थ दिखाई देते हैं। एक अर्थ जो हमको मिलता है, एक अर्थ जो है वो सार्वभौमिक अर्थ है, और दूसरा उनके व्याख्यानों में एक राष्ट्रीय चेतना का उदय हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो रोमारोला की जो बात है, उसको आधार बनाकर हम उनके व्याख्यानों का अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें उनके जो है व्याख्यानों में पूरी तरीके से राष्ट्रीयता का उदय दिखाई देता है। और इसका स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव, तो हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरविंदो घोष जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर उनके विचारों का प्रभाव हमको दिखाई देता है। अलवर में एक बार जो है तिलक की जो है स्वामी जी से भेंट हुई, तो तिलक से उनका परिचय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तिलक ने बहुत व्यंग्यात्मक स्वर से जो है स्वामी जी की चुटकी ली। तो ऐसे में जो है फाइनली जब तिलक को पता चला कि स्वामी जी की विद्वता के बारे में जब उनको पता चला, तो उन्होंने स्वामी जी से जो है अपने साथ एक रात ठहरने का अनुनय विनय किया। तिलक के बारे में कहते हैं कि तिलक ने घोषित किया, बताया कि जो है पूरे 1000 या 1200 वर्षों में शंकराचार्य के बाद जो है स्वामी विवेकानंद जो है हिंदू समाज के एक महापुरुष है, एक युग पुरुष हैं, जिनके विचारों में हमको जो है थैंक यू। पेपर प्रेजेंटर्स, टाइम लिमिट का बहुत ही ध्यान रखा जाए। अभी काफ़ी प्रेजेंटर्स बचे हैं। अगले प्रेजेंटर हैं हमारे अनूप कुमार जी। अनूप कुमार, बहुत शॉर्ट में अपनी बात को समझाने का प्रयास करें आप लोग। A very good evening to all members on the stage and distinguished faculty members. A very good evening to all the qualified students. I am Anup Kumar, a senior associate in University of Lucknow in Department of Engineering. My topic is Genesis and Contribution of Ramakrishna to Humanity. The religious and spiritual organization Ramakrishna Mission has its main office in Beluru Mutt, West Bengal. Ramakrishna Mutt and missions were established in 1886 and 1897 respectively as per the Ramakrishna's instructions by sannyasis and his
chief disciple led by Swami Vivekananda. A group of sannyasis were formed to spread spiritual knowledge based on the Vedanta as professed by Sri Ramakrishna and practically demonstrated by his own life. Rola Roma remarks that he was consummation of the 200 years of spiritual life which was presented by the millions of Indians. The Ramakrishna mission represented all major aspects of Indian spirituality. Ramakrishna mission used to counsel spiritual aspirants, both lay people and monks, to commit their lives to not to just to prayer, meditation and repeating God's name, but also to serving all beings, understanding that God dwells in everyone's heart. That is the service of the man, is the service of the God. And in conclusion, I would like to say that the Ramakrishna mission believes in the concept of universal religion, which is heavily influenced by Christianity. They argue that all religions are true. This movement has also contributed a lot to the Indian civilization in terms of education, humanity, literature and spirituality. Swami Vivekananda himself wanted to see India conquer the world through the spiritual power that existed in Hinduism, and one of them is the yoga. Thanks for your kind attention. Thank you. Our next presenter is Tanu Srivastava. Good evening to everyone present over here. This is Tanu Srivastava presenting my paper on Satyashodak Samaj and the discourse of truth that it tried to establish. We all know that how truth has been elemental in the Indian nationalist struggle. With Gandhi's Satyagraha and his experimentation with truth, he came to realize that the British conquest was a morally condemnable act and exhorted millions of masses into coming and raising their voices. While the Gandhi's truth has been the focal point of various nationalist historiographies, Phule's truth and Satyashodak Samaj's evolution in the way different, parallel, unacknowledged truth came forward has been something that I really wanted to discuss. Because there is apparent lack of time, I'll try to quote Jyotiba Phule directly to ensure the points that he was trying to make in countering the dominant narrative of nationalism and upper caste reformism. To quote Phule directly, these days, the stalwarts of purity have been hiding their sword of religion with all the ritual weapons that cut the throats of all the creatures of God under the guise of being great lovers of Swadeshi, and have been telling the frolicsome promising offspring of Shudras, Parsis and Muslims through their books, newspapers and sabhas that they should put aside all grumbling about the hierarchies and distinctions in the country and become united. It was a contestation of a dominant truth, and in the process a more democratizing and a more subversive truth came along. Phule and his truth-seeker society's persuasive intellectual reflection imagined a society with different truths, different viewpoints and different standpoints. It was the truth of ethical theorizing based on the legitimacy of one's lived experience. It was the truth of social inclusion against exclusion. It was the truth of representation and participation against the politics of absence. It was the truth of reason against superstition and regressive ritualism. In the scheme of Indian philosophical system Jainism, we have a thought which is very democratizing, and it's called Anekantvad, which means that truth is circumstantial to one's location in a socio-political environment, which again establishes that there would always be different standpoints and it is important to reach a harmony. Through the works and scholarship of Phule and his Satyashodak Samaj, we encounter the dominant truth through Dalit feminist and feminist epistemological standpoints. Thank you so much, everyone. Our next participant is Namrata Tiwari. A very pleasant evening, respected Chair,
co-chair, ma'am, colleagues and friends. It will be only fitting to express my gratitude to the conveners for organizing this event where I can present my paper on the topic Indian national struggle. Just national or more? India received its freedom, a long due freedom, after endless struggle of numerous people and organizations, their blood, sweat and tears. The journey was termed Indian national struggle. But have you ever wondered what is so national about this journey? Was it only national? Was it only limited to the boundaries of the struggling nation vis-a-vis its involvement and impact? If yes, then the term does justice to the event which was phenomenal in its impact. But if not, then there is need to do some serious rethinking. This paper is a humble attempt to do the same. It put forward the proposition that the role played by our forefathers, foremothers, and various crucial organizations were not just nationalistic, but more. They had elements of internationalism in them. It does so in 4 parts, where in the first part, it talks about and analyzes the Indian organizations and leaders, their activities, and tries to come up with the conclusion whether they had elements of internationalism in them or not. In the second part, it analyzes the diaspora, which is the next stakeholders in our struggle. In the third part, it talks about various ideas, including ideas from Indian origin and ideas from foreign origin. In the fourth part, it talks about the impact, the scope of the impact of our struggle. It talks about how not just Indians but foreigners played part and rendered internationalistic character to our national struggle. Just a while ago, our speaker talked about how Sister Nivedita, how organizations from foreign like Home Rule League, which was established in many cities like London, New York, Paris, played a huge role. How when Subhash Chandra Bose did fundraising event in Rangoon, not just Indian diaspora, but people from Burmese origin and Japanese origin did the support in terms of money, man and power wholeheartedly. Thus, due to the paucity of time, I'll just conclude that the paper in the end gives the result which is in line with the proposition which was mentioned in the beginning. In the end, I will just quote Nehru, who in a way gives the essence of the entire paper of mine. If we ignore the word, we do so at our own peril. So let's just not have isolationist mind, not see things in isolation and see things in a holistic manner. I'll rest my presentation. Thank you. Thank you, ma'am. You are from which place? Ma'am, Arekanya. Okay. I'm a little nervous and shaking. No, excuse me. Excellent. You are a teacher there? No, I'm a research scholar, but I did teach in SS1 for 5 to 6. Excellent. And it's huge honor for you to just come out of a chair and give that pat on my back. Yes. Thank you so much. Great. And I'm shaking right now, so I'll go and drink some water. Thank you. Thank you. Just take care. Yes. Thank you, Namrata. Our next participant is Ekta Singh. Good evening, everyone. My name is Ekta Singh and I am a research scholar under the supervision of Dr. Himanshu Sir from SPM PG College, University of Allahabad. And my topic is the leading ladies, remarkable female fighters for liberation of India.
From the early days of a struggle, women played a vital role in fighting against the British rule. They marched in protest, organized boycotts, and even took up arms. They faced many challenges, including social and cultural barriers, but they overcame them all to participate in the struggle. Their legacy is an inspiration to us all. They showed us that women are just capable as men in fighting for what they believe in, and they paved the way for future generation of women to participate in the political process. Here are some of the most famous women who fought for India's freedom struggle. The first one is Rani Abakka, a Jain queen who ruled the Ulal kingdom in Karnataka. She fought against the Portuguese for years, and her bravery called her the title of unsung warrior queen. The second one is Rani Chennamma of Kittur, another brave queen who fought against the British. Her legacy lives on as a symbol of resistance against oppression. Her brave fortitude is honored each year during Kittur Utsava, making her an enduring symbol of Karnataka's quest for independence. The third one is Bhima Bai Holkar, a skilled warrior who commanded a brigade of 2,500 cavalrymen against the British. She was known for her fearlessness and leadership, and she inspired other women to join the fight for independence. The next one is Bhikaji Kama. Bhikaji Kama, a passionate woman who raised the Indian flag for the first time on foreign soil in 1907 at Stuttgart, Germany. These are just a few of the many ladies who fought for India's independence. Their stories are a testament to the power of women and their determination to fight for what they believe in. In my research paper, I have discussed the contributions of these brave women in detail. I have also tried highlight the challenges they faced as female freedom fighters and how they overcame them. I hope you all were able to connect with me in honoring the memory of these remarkable women. They are an inspiration to us all, and their legacy will never be forgotten. Thank you. Our next presenter is Stuti Agrawal. Our next presenter is Kiran Kumari. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं किरण कुमारी, मेरा टॉपिक है भारतीय महिला संघ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति में व्यापक रूप से परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया था। विभिन्न समाज सुधार के परिणाम स्वरूप अब नारियों को अपने उद्धार की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। उन्होंने यह महसूस किया कि हमें अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना होगा और एक ऐसे संगठन होगा जो महिलाओं की स्थिति सुधार के लिए उस पर दबाव डालेगा। इन्हीं सभी से प्रेरित होकर महिलाओं ने अनेक महिला संगठनों की स्थापना की। इन सभी संगठनों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और सहभागिता दोनों ही उच्च स्तर पर और विशेष महत्व की थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं ने अपने नेतृत्व एवं राजनीतिक साख को मजबूत करने के लिए अनेक संगठन बनाए, जैसे बंगाल में अघोरी कामनी समिति, बनारस में भारत महिला परिषद और इलाहाबाद में प्रयाग महिला समिति। भारत महिला मंडल या भारतीय महिला संघ विमेन इंडिया एसोसिएशन एक अद्वितीय संगठन था, जिसकी स्थापना 1917 में एनी बेसेंट, जिरोठी जिनराज दास, मालती पटवर्धन, अन्नू स्वामीनाथन, श्रीमती दादाभाई, श्रीमती अम्बु फूल ने विमेन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना मद्रास में की। इस संगठन ने
न केवल भारतीय महिलाओं के लिए वरन यूरोपीय महिलाओं के लिए भी द्वार खोले। श्रीमती एनी बेसेंट को सर्वप्रथम इस मंडल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। इस मंडल द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं को राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए 1917 में श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में भारत प्रतिनिधित्व मंडल तत्कालीन गवर्नर जनरल मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में महिलाओं की दशा सुधार करने हेतु अपने अधिकारों की मांग की कि महिलाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, प्रसूति सेवाएं एवं समान पुरुषों के समान वोट के अधिकार दिया जाए और इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं को सीमित रूप से मतदान करने का अवसर भी प्राप्त होता है। 1919 में श्रीमती एनी बेसेंट, मार्गरेट कजन्स, श्रीमती मुथुलक्ष्मी, धनवंती रामाराव आदि महिलाओं के प्रयासों से मद्रास विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। 1926 में पहली बार महिलाओं ने मतदान में भाग लिया तथा कुछ शर्तों के साथ विधानसभा में चुनाव भी लड़ी। अब WIA के क्या उद्देश्य थे इसके बारे में। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि महिलाओं की लैंगिक विभेद को समाप्त करना, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना, उनमें समानता के अधिकार दिलाना, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित मामलों पर कार्य करना, राष्ट्र का दिशा निर्देश करना, गरीबों की सेवा करना, महिला शिक्षा में अनिवार्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को समाप्त करना, महिला फ्रेंचाइजी को बढ़ावा देना। यद्यपि इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं जो देश भर में महिलाओं के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन समय के अभाव में इसका मैं अभी उल्लेख नहीं करूंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए स्वयं महिलाओं ने अनेक संगठनों की स्थापना कर योगदान दिया, जैसे स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना, बाल विवाह का निषेध, बहुपत्नी प्रथा का विरोध। धन्यवाद। Our next participant is Ashish Jaiswal. My name is Ashish Jaiswal, student of Even Christian College, Political Science. My topic is Brahmo Samaj. It is one of the most influential religious movement in India and had made a significant contribution in making of modern India. It was one of the most installment in religious and social reform. The Brahmo Samaj had a significant on Indian society, impact on Indian society. It has helped to promote religious tolerance, social beliefs and cultural reforms. Initial foundation of Brahmo Samaj. In 1814, Raja Ram Mohan set up the Agni Sabha or the Society of Friends in Calcutta to propagate the monotheistic ideals and the Vedas and to campaign against adultery theory, caste rigidity, meaningless rituals and other social evils. And he promoted monotheism which promotes one single God. He gave some process of worship, that is prayer, meditation and reading of Upanishad, where to be the form of worship and non-governance image of sculpture significant. And now I will go on the significance of Brahmo Samaj. It denounced the polytheism and idol worship. It discarded faith in divine avatars. It denied that any sculpture could enjoy the status of ultimate authority transcending from human and conscience. It took no definite stand on the doctrine of karma and transmigration of soul and left it to the individual Brahmins to believe either way. Now I will go Devendranath Tagore participation in this. Maharshi Devendranath Tagore, who was the father of Rabindranath Tagore and also a Western thought, Tagore joined the Tat Bodhi Sabha, who founded by himself in 1839, which along with its organ Tat Bodhi Patrika in Bengal. Successor after, and now I will go Keshav Chandra Sen participation in this Samaj. This Samaj experienced another phase of energy when Keshav Chandra Sen was made the Acharya.
Keshav Chand Sen was made the Acharya by Devendranath after the initial joining of the Brahmo Samaj. How Brahmo Samaj was separated into two Samaj. Keshav was instrumental in propagating this movement, and branch of the Brahmo Samaj were opened outside Bengal in the United Province, Punjab, Bombay, Madras and other towns. Devendranath Tagore did not like some of the sense ideas which he found too radical from all social, religious and strong views against the caste system, even open support to the intercaste system. Keshav Chand Sen wants cosmopolitan of the Samaj meeting. Incident happened in this time. In 1878, Keshav Chand Sen broke all the rules of Brahmo Samaj and married of her 13-year daughters with the king of Bihar, who was Kuch. Keshav and his followers founded, after discussing this incident, followers set up a new Samaj, that is Sadharan Brahmo Samaj. Significance of the Brahmo Samaj. In matter of social reform, the Samaj attacked many religious dogmas and superpositions, worked for the respectable women for women in the society, condemned of Sati, worked for abolition of Parda system, discouraged child marriage and polygamy, widow marriage, and for the provision of educational facilities. Also attacked the caste system, untouchability, though in this matter it attained only a limited access. Thank you so much. Our next participant is Bhavna Tripathi. Good evening everyone, to all the professors and fellow research scholars present here. Myself Bhavna Tripathi, research scholar, Singhania University. My topic of presentation here is Impact of Swadeshi in Atmanirbhar Bharat. So I'll briefly